sin c, sin x sin d upon h. So it will be 2 cos c x plus h plus d plus x by 2. And it will be limit h tending to 0 also, and here also it will be limit h is tending to 0. 2 cos c की जगह पे x plus h plus x by 2 sin x plus h minus x by 2 whole upon h. यहाँ पे न्यूमरेटर में sin x plus h माइनस जो sin x था इसको हमने मान लिया sin c माइनस sin d और उस पे ये फॉर्मूला लगा दिया. तो 2 cos c की जगह पे x plus h, d की जगह पे plus x by 2 sin c की जगह पे x plus h माइनस d की जगह पे x by 2. नाउ वी विल सॉल्व. ये समझ में आया? यस मैम. यस मैम. ओके. अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही इन बिटवीन आप मुझे वहीं पे स्टॉप कर देना. ओके. f dash x is equal to h is tending to 0 2 cos x plus x plus h by 2 2x plus x by 2. This x and x will cancel. Sin h by 2. Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, it is repeating. Repeating. What happened? Just wait. Hello. Now it's fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Upon h. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 2 cos, I have just simplified it, x plus x, 2x plus h by 2 sin x plus h minus x, x cancel h by 2 whole upon h. Okay. Now, recall the formula from the limits. That limit x is tending to 0, sin x upon x is equals to 1. Right? This we had done in the limits. That limit is tending to 0, sin x upon x will always be 1. Now, we will apply the limit. So, limit h is tending to 0, 2 cos 2x plus h by 2, right? H by 2 in the center. And into sin h by 2 upon h. What I had done, ये जो sin h by 2 वाली टर्म थी ये प्रोडक्ट में थी, जो h डिनोमिनेटर में था इसको मैंने sin h by 2 के साथ लिख लिया. अब मैं क्या करूंगी h by 2 into 2 ताकि ये sin h by 2 upon h by 2 वाली टर्म जो है वो 1 बन जाए. Is equals to apply the limit h is tending to 0, 2 cos 2x plus 0 by 2 into limit h is tending to 0, sin h by 2 upon h by 2 into 2. This will be 1. So it is 2 cos 2x by 2 into sin h by 2 upon h by 2. It is 1 using this formula, 1 by 2. This 2 is in the denominator, right? This 2 cancel. So it is 2 cos x into 1 by 2, which is equals to cos x as the answer. Otherwise also you have to keep in the mind that formula derivative of sin x is equals to cos x. But here we have to prove it using first principle. चाहे sin x का डेरिवेटिव है, चाहे cos x का डेरिवेटिव है, चाहे secant है, चाहे cosecant है, हम सारे इन फॉर्मूला से प्रूव करेंगे, राइट? वी कैन सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल.
So सबसे पहले f of x is equals to sin x. Then f dash x is equals to limit h is tending to 0 f of x plus h minus f of x upon h. हमने फॉर्मूला लिख दिया ताकि अगर क्वेश्चन गलत भी हो गया इवन देन हमें एग्जाम्स में फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाएं. तो f dash x की वैल्यू लिमिट h is tending to 0 sin x plus h, x is replaced by x plus h minus f of x means sin x upon h. Now we will apply sin c minus sin d formula. It is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. So f dash x is equals to limit h is tending to 0 2 cos c means x plus h, d means plus x upon 2 sin c means x plus h minus d means x upon 2 whole upon h. X plus x 2x plus h by 2 it will be x cancel it will be h by 2. So we will be having limit h is tending to 0 2 cos 2x plus h by 2 sin h by 2 whole upon h. Limit h is tending to 0 2 cos. So we are writing this term 2 cos 2x plus h by 2 separately and sin h by 2 we are taking this h in the denominator of sin term so that we can make the h in the denominator as h by 2. So I have multiplied and divided with 2 so that my sin h by 2 upon h by 2 will be 1 using the formula limit x is tending to 0 sin x upon x is equals to 1. तो मैंने जब h को 0 पुट किया लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास क्या आ गया 2 cos 2x plus 0 by 2 limit h is tending to 0 sin h by 2 upon h by 2 into 2. So now it is 2 cos 2x by 2 2 cancelled so I left with 2 cos x into 1 by 2 2 cancelled my final answer is cos x and you have to keep in mind as a formula also the derivative of sin x is cos x. Now you have one question, a 10th question in the exercise. Find the derivative of cos x from first principle. So this is the same, almost same. You will be applying first principle. अब formula कौन सा लग जाएगा? Cos c minus cos d का. Cos c minus cos d का formula क्या है? देखो आपने क्या लिखा हुआ है cos c minus cos d. So it will 2 be minus yes Plus 2 minus sin 2 sin c c plus d upon 2 very good sin sin c c minus d upon upon very good. So we will apply this formula. हमारे पास साइन साइन वाली टर्म्स आ जाएंगी. एक साइन वाली टर्म के साथ हम डिनोमिनेटर में h को ले जाएंगे राइट. इसी तरह से सारा प्रोसीड करते रहेंगे और cos x का डेरिवेटिव हमारे पास sin x आ जाएगा. ओके तो ये एज अ एक्सरसाइज आपके लिए है. ये 10th क्वेश्चन आपने ट्राई करना है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है. नाउ 11th क्वेश्चन when we are having find the derivative of sin x into cos x. तो इसके हम फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें इतना पता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव sin x होता है बट विद नेगेटिव साइन. जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे ना तो आप देखोगे आपके पास माइनस sin x आ गया है. तो हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का. So it is question number 11 first. Find the derivative of sin x into cos x. So exercise 13.2. Exercise 13.2. Question number 11 first. Derivative of sin x cos x. Now you have to keep in mind that derivative of sin x is equals to cos x and derivative of cos x is equals to minus sin x. मतलब cos x ने जो है हमेशा अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाना है. अब यहाँ पे भी क्या है कि अगर को आ गया तो साइन जो है वो नेगेटिव. जितने भी cos cos वाले फॉर्मूले हैं ऑलमोस्ट सब में उल्टा ही हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है राइट. So derivative of sin x is equals to cos x and derivative of cos x is equals to minus sin x.
अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव निकालना है, यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल. ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे. सो इट विल बी sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x into cos x as it is equals to sin x. Derivative of cos x is minus sin x plus derivative of sin x is cos x into cos x. Sin x into sin x minus sin square x. Cos x into cos x cos square x. So it is cos square x minus sin square x. और इसका फॉर्मूला हमने किया है अभी. क्या होता है ये? cos 2x cos 2x. ठीक है, दिस इज वन वे कि हमने इसको प्रोडक्ट रूल इस पे लगा दिया. राइट, नाउ आई विल शो यू अनदर वे. ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मतलब एक एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं. राइट, डेरिवेटिव एंड ट्रिग्नोमेट्री यू विल फाइंड बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग. And we are doing now f of x is equals to sin x into cos x. What I'm doing, I'm multiplying with 2, I'm dividing with 2. Okay, 1 by 2 2 sin x cos x. F of x is equals to 1 by 2 2 sin a cos a sin 2a. So it will be sin 2x. 2 sin a cos a, we have done the formula sin 2a. So 2 sin x cos x will be sin 2a. Now f dash x. 1 by 2 as it is. Sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into base 2x का डेरिवेटिव 2. 2 2 के साथ कैंसल. So f dash क्या x क्या आ गया? Cos 2x as the answer. Got it? So there are two methods. एक तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया sin x cos x पे. दूसरा हमने इसको पहले कन्वर्ट कर लिया एक सिंगल टर्म में, क्योंकि सिंगल टर्म का डेरिवेटिव हमें पता है क्या आएगा. तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया. 2 sin x cos x, 2 sin x cos x will be sin 2x. 1 by 2 as it is. sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2x एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, that will be 2. So 2 2 के साथ कैंसिल. So derivative will be cos 2x as the answer. ये समझ में आया? रिदिंदर, ये समझ में आया? रीड दमन, क्या कंफ्यूजन है कोई? मैम why you have multiplied cos 2x by 2? यस, मुझे हाँ मेरे को दिमाग से निकल गया कि हमें +2 में है ना ये सारी चीजें, तो मैं आपको पूछने लगी कि आपको समझ में आया कि नहीं. क्योंकि डेरिवेटिव में क्या होता है कि जब मुझे साइन डेरिवेटिव में हम हर स्टेप को इन्वॉल्व करते हैं. sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x. पहले हमने मेन टर्म का डेरिवेटिव लेना है. मेन टर्म क्या है हमारी? sin 2x. sin 2x का डेरिवेटिव 2x आ गया. फिर जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेना है. एंगल कितना है? 2x. 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2. ये सारी चीजें आप +2 में करोगे. अभी आपको इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ही नहीं किए. अभी सारे नहीं है जिसमें एंगल 1 1 है, तो आप ये मेथड रहने दो, आप वही फॉलो कर लो, है ना. मैम दिस इज आल्सो इजी. हाँ, दिस इज इजी अदरवाइज, बट ये चीज आपको +2 में आएगी कि एंगल्स का डेरिवेटिव कैसे कैसे आता है आगे, बट इट इज इजी. sin 2x का पहले cos 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव. एंगल 2x का डेरिवेटिव आ गया 2. ओके,
बट अभी +1 में आपको इतना हाई लेवल नहीं है। +1 में सारे आपके x जितने भी क्वेश्चन होंगे x के साथ ही है, 2 3 आएगा ही नहीं आपको, मैम एग्जाम में कर सकते हैं ऐसे? नहीं आएगा ना। ये देखो जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ x है, तो आपको x वाले क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है ना। वो +2 में आएगा आपको। ओके मैम। दिमाग से निकल गया कि मैं +1 को बढ़ा रही हूँ। ओके, सो नाउ सीकेंट x। ओके, अभी इसका हिंट दे देती हूँ, बाकी फिर आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे करने हैं। secant x, you know secant x is equals to 1 upon cos x. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, question number 11, second, you have to find डेरिवेटिव ऑफ secant x। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब हमें तो वही 3-4 रूल पता है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम इस पे लगा देंगे, लगा सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, मतलब वो 1 अपॉन cos x पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने secant x पे डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिया तो secant x प्लस h माइनस secant x आ जाएगा, जिसका हमारे पास कोई सीडी फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इस पे फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। हमने इसको लिख दिया 1 अपॉन cos x। ठीक, अब इस पे लगा दो क्वोशिएंट रूल, f डैश x इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ गया। अब cos x डेरिवेटिव ऑफ 1 0 1 डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x and in the denominator we are having cos square x, so it is ये 0 into cos x 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, sin x अपॉन cos स्क्वायर x, जिसको मैं लिख सकती हूँ sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x। sin x अपॉन cos स्क्वायर x है, सो मैंने sin x अपॉन cos x लिख दिया, 1 अपॉन cos x लिख दिया, तो ये आ गया 1 अपॉन cos x secant x इंटू sin x अपॉन cos x टेंजेंट x। ये 1 अपॉन cos x वाली टर्म मैंने आगे लिख दी secant x tan x, क्योंकि secant x का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है दैट इज secant x tan x। ओके, तो दिस वी हैव derived using quotient rule, अदरवाइज आपको आगे चल के ये +2 के लिए तो सारे फॉर्मूले याद रखने हैं कि secant x का डेरिवेटिव secant x tan x होता है, बट वी हैव प्रूव्ड इट using first principle, sorry, using quotient rule। f of x is equals to 1 upon cos x, f dash x is equals to u upon v फॉर्मूला। सो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो ताकि आपको फॉर्मूले के नंबर मिल जाएं, v स्क्वायर v as it is u dash, okay, v as it is u dash minus u as it is v dash, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है इस पे u अपॉन v। सो डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने, तो cos x स्क्वायर आ गया, फिर cos x डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज cos x एज इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस न्यूमरेटर 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, देन cos x into 0 minus minus plus derivative of cos x is minus sin x, this minus minus plus, then sin x upon cos square x, sin x upon cos square x को हमने रिड्यूस कर दिया, साइन एक cos हमने साइन के साथ ले लिया, एक को हमने अलग ले लिया, 1 upon cos is secant and sin upon cos is tangent, and you have to keep in mind also that derivative of secant x is equals to secant x tan x। बट अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा फॉर्मूला नहीं लिख के आओगे कि f dash x is equals to secant x tan x answer, you will have to prove it। okay, so we will be doing up to this question today, any doubt you can ask me, and then you have to complete this exercise। okay,
5 Okay, secant ma'am. डेरिवेटिव जो थर्ड पार्ट है 5 secant x, इसमें क्या करेंगे, secant x को लिख लेंगे 1 upon cos x, फिर 4 cos x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, cosecant x को लिख लेंगे 1 upon sin x, cot x को लिख लेंगे 3 cot x को 3 cos x upon sin x प्लस 5 अपॉन sin x। तो दो इस पे भी क्वेश्चन टू लगा दो, इस पे भी क्वेश्चन टू लगा दो। फिर ये डेरिवेटिव तो सिंपल है, 5 sin x का डेरिवेटिव cos x, 6 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, 7 का डेरिवेटिव 0। फिर ये जो 7th है 2 tan x मीन्स sin x अपॉन cos x माइनस secant x मीन्स 1 अपॉन cos x, इसका डेरिवेटिव ले लेना आपने, ठीक है। By this your chapter is completed. अब miscellaneous examples and questions जो भी स्टूडेंट करना चाहता है वो कर सकता है, ओके। बट 13.2 दिस जो चैप्टर, मिसलेनियस है वो भी नोटबुक पे करने हैं। हाँ वो भी नोटबुक पे, एवरीथिंग ऑन नोटबुक, ओके। और इसको प्रिपेयर कर लो, फिर हम इसका टेस्ट रख लेंगे, ओके, नेक्स्ट वीक। मैं जो मैम मिसलेनियस एक्सरसाइज है 13 चैप्टर की वो भी नोटबुक पे करनी है। हाँ वो भी नोटबुक पे करनी है। आपको मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एनसीईआरटी की बुक की प्रॉब्लम है, वो आप नोटबुक पे कर लो। जो भी डाउट है वो आप डिस्कस कर सकते हो, वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं सब Okay, ma'am. नहीं कर रही हूँ मिसलेनियस के लिए, क्योंकि कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं, तो ये ना हो कि जो मेन एक्सरसाइज है वो इतना डर जाए, वो थोड़े से मिसलेनियस के क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, तो आप इतना डर जाओ उनसे कि जो बेसिक है आपका एक्सरसाइजेज है वो भी ना कर पाओ, इसलिए मैं सबको फोर्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट बनता है वो मिसलेनियस कर लो, जिनके लिए यही बहुत, जिनको ये लगता है कि हमारे लिए तो यही बहुत मुश्किल है, वो पहले एक्सरसाइज करो, फिर रिवीजन में मिसलेनियस, ओके। नाउ मीटिंग इज अबाउट टू एंड, 1 मिनट रह गया, ये ऑटो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। मैम मिसलेनियस भी करवा देना। ओके मैम। ओके जी, ओके फाइन, ठीक है, ओके जी, बाय बाय। बाय मैम। Preparing this बाय chapter. Bye, मैम। ma'am. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye. So attendance: Komal, Harkirat, Jaspreet, Ridaman, Anamika, all are present. Gurvas, Ma'am, yes. Harman,